as well as I have downloaded attendance list. Okay. Okay, so we need to discuss about the essential part of the World Wide Web. That is, uh, have you think about how a website is accessed? As soon as we type an address in the address bar and we just click enter, then what happened behind it? Anyone of you, have you ever thought about that, or any idea? Yes, sir. Okay, so the basic idea is between the client and server model. So it is also known as the client server architecture. Okay, always the web technology has a client server architecture. Means we are as a client, we request servers, which are the those websites like Amazon, Facebook, Twitter, whatever, those websites that we want something from you. Please accept my request and generate a response and send me that response. Now, between the client and the server, the most important thing, which is communication medium, which provides the connection between the client and the server. So those three essentials part we need to discuss. So just like that, this is the architecture of basic client server model, where client means not the user. We as a user, we actually use web browsers to serve the web, whether it is a Chrome, Mozilla Firefox, or any kind of web browser you are using. Okay, and server, those are the systems which takes our requests, process them, generate a response, and send back to the browsers. Okay, then between the client and the server, there is a network. It is not as shown in the picture that it is directly connected. These are connected in some indirect manner, and that could be wired or wireless connection. And the bidirectional arrow you can see. So this bidirectional arrow means the whole network. This could be a whole internet. So it is quite possible कि आपने अपने कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट की है, वो सर्वर इस वर्ल्ड के किसी दूसरे कॉर्नर पर रखा हुआ है वो सर्वर, और ये एंड यू टू सर्व योर रिक्वेस्ट, वो पूरा इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब जो फैला हुआ है, पूरा इंटरनेट उसके लिए काम कर रहा है. It is quite possible. Okay, so uh, so three things are there. Now what happens actually? So first of all, client requests for some document. Now a document means what? Document is not a kind of text document. It could be anything. It could be a text, it could be audio, video, image, whatever, anything which you have explored in through the internet or you have downloaded through the internet. It could be any type of file, it could be any type of extension of the file. Okay, any type of different movie category. There are number of extension of it. Movie category, okay, means motion pictures, uh, anything. Okay, so anything, it is known as a generally document. So for example, client requests for a document A, and server takes the request, search the document A. Okay, and when it finds the document A, it provides to the client again. Simple. Now now one more thing is there, that sometimes we are
much confused between the internet and the web. Sometimes we think that web is internet, or sometimes we think that internet is web, or both are the same thing. No, internet is just an interconnection of different networks. Interconnection of, so that is the short form. Inter means interconnection, net means network. Interconnection of different networks, or all the networks. So interconnected networks, when again connected to the other networks, so they create a messy kind of network. Each and every computer is connected through a network to the internet. So that could be wired cables or wireless connections. That could be there could be anything. So when we connect all these computers through the different networks, okay, and again those networks are connected to each other, then it is an internet. Now how come it related to the web? So now when those interconnected networks or the computer, when they share documents and resources, so a collection of interconnected documents and resources, now it becomes web. So because each and every computer, ठीक है, normally हम always we work as a client, we work as a client. लेकिन गूगल, फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल को हम जब हम एज अ रिक्वेस्ट करते हैं फॉर किसी, एज अ गूगल हम यूज सर्च इंजन की तरह अगर गूगल को यूज़ करते हैं, तो गूगल क्या रोल प्ले कर रहा है? गूगल रोल प्ले कर रहा है सर्वर का. Okay, so now combinedly, when the web it is spread over the internet, now it becomes World Wide Web. When any computer can share its information through the internet, and many features like emailing, file sharing, any kind of messaging, and so on. So that is the thing behind the. Now, as you have already studied data communication, guys, so some common things are there, but we need to use it in the web technology as well. So we need to briefly discuss. So, internet. Now, if you connect, for example, guys, just answer me a little question, that if I give you components of any computer, okay, all the components of the computer, are you able to use that computer by integrating those components? No, sir. Why? What is the problem? Sir, we need check protocols on how to access. Yes, the important thing is what? Protocols. So, just like the single system, we have some kind of protocols in the networking. When client server model is there, some protocols are always there to communicate between, because protocols are those rules which are accepted globally. We cannot change the protocol, we cannot deny कि हम इसको यूज नहीं करेंगे. नहीं यूज करोगे, you can't access. So, we will talk about the communication protocol. So, communication protocol, basically we need to two types of communication protocol. As we have known, the one is IP. Everyone knows that the IP is what? Dynamically provided address for your particular computer or mobile device or any of the device which is connected to the internet. Who provides the IP? Your internet service provider, means ISP. So what does it do?
So the communication protocol, it is a specification how communication between two computers will be carried out. So one is responsible IP. This defines the packets that carry block of data from one node to another. IP से हम डेटा कैरी कराते हैं, ओके। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दीज टू प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल कि एक एंड से, एंड यूजर मतलब क्लाइंट भी एंड यूजर है और सर्वर भी एंड यूजर है। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो क्लाइंट सेंडर है, सर्वर रिसीवर है। जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है तो सर्वर सेंडर है और क्लाइंट रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में, मतलब एंड यूजर्स के बीच में सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो रही हैं विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी इशू। ये चेक करता है टीसीपी और यूडीपी। नाउ टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, और यूडीपी है रिस्पॉन्सिबल जब कनेक्शन लेस है प्रोटोकॉल, ओके। सो जो वायर्ड मीडियम है, वायरलेस मीडियम है, दैट डिपेंड्स अपॉन द दैट प्रोटोकॉल। तो इसके साथ जब हमें जो सर्विसेज मिलती हैं, जो एप्लीकेशंस मिलती हैं, वो हमें मिलती हैं डीएनएस। डीएनएस इज डोमेन नेमिंग सर्विसेज। एसएमटीपी जो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। एफटीपी है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ओके। सो you have definitely heard about the details, technical details of IP, but as we know that the basic terminologies कि IP most important thing, हमें IP दिया क्यों जाता है? क्योंकि it's a kind of unique address। क्योंकि आपकी machines के अंदर guys एक एड्रेस होता है, दिस इज नोन एज अ फिजिकल एड्रेस। अब वो फिजिकल एड्रेस तो आपकी मशीन के अंदर है व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ना वो फिजिकल एड्रेस कैसे पता चलेगा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि ये फिजिकल एड्रेस पे मुझे को ट्रैक करना है? तो वो फिजिकल एड्रेस ट्रैक होगा जब सर्विस प्रोवाइडर ने आपको आईपी दिया। आईपी से आपका फिजिकल एड्रेस मैप होता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से प्रोटोकॉल आपने पढ़े हैं जो आईपी से फिजिकल और फिजिकल से आईपी मैप करते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज में भी कई बार पूछा जाता है। इफ यू से दैट यू नो कंप्यूटर नेटवर्क्स, एनीबॉडी? You have already learned about the data communication. Which protocol is responsible? So can you repeat the question? IP. Your service provider provide you an IP, and your machine has physical address. So physical address and IP address are mapped together. मीन्स हम IP से फिजिकल निकाल सकते हैं, फिजिकल से IP में जा सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होते हैं? There is TCP/IP protocol. नो 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 नो, it is address resolution protocol. It is also known as ARP, ARP and RARP, address resolution protocol and reverse address resolution protocol. These two protocols are responsible to map IP and physical address. Now क्या होता है फिजिकल एड्रेस? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। हर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है उसको एक फिजिकल एड्रेस दिया जाता है। लैपटॉप में इसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, डेस्कटॉप में भी हम इसको मैक एड्रेस बोलते हैं, मोबाइल में भी होता है, क्योंकि मोबाइल भी अब आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। मोबाइल में एड्रेस को क्या बोलते हैं, मेरे मोबाइल के फिजिकल एड्रेस को? Sir, IMEI. यस, IMEI। और अगर आपके पास जितनी भी सिम स्लॉट होंगे, हर एक सिम स्लॉट के लिए एक IMEI मिलेगा। सो दैट इज द फिजिकल एड्रेस। नाउ तो फिजिकल एड्रेस जो है वो IP एड्रेस के साथ मैप होता है एवरी टाइम व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ओके।
तो क्योंकि आईपी एड्रेस डायनेमिकली होता है, आप जब भी किसी वाईफाई फ्री वाईफाई लोकेशन पर भी जाके एक्सेस करते हो, आप बार बार देखेंगे, अगर अपना आईपी आप खुद चेक करेंगे तो आप डिस्कनेक्ट करके जितने बार रिकनेक्ट करेंगे आपको एक बार डिफरेंट आईपी मिलेगा। ओके, सो हमें टेक्निकल उसमें नहीं जाना है। सो इट्स अ 32 बिट नंबर। ओके, और 4 ब्लॉक में होता है ये आईपी एड्रेस, लाइक 173.192.201.96। सो 4 ब्लॉक में होता है, और हर एक इंटरनेट अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन इसको अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। ओके, so the responsibility is what? To move packet of data from node to node. Okay, now सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस से ही एग्जैक्ट एड्रेस, जैसे कि हमारा घर का पोस्टल एड्रेस होता है वही होता है आईपी एड्रेस, क्योंकि फिजिकल एड्रेस मशीन के अंदर है, वो हर जगह वर्ल्ड वाइड नोन नहीं होता है, बट आईपी एड्रेस एक कॉमन प्रोटोकॉल है, तो ये वर्ल्ड वाइड नोन है। तो यही है जो आपके लैपटॉप तक, आपकी मशीन तक डेटा को पहुंचाता है यूजिंग द एड्रेस। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं जो हम यूज़ करते हैं, स्विचेस यूज़ करते हैं, ब्रिजेस यूज़ करते हैं, हब्स यूज़ करते हैं, गेटवेज यूज़ करते हैं, मॉडेम यूज़ करते हैं। ओके, जो जब डिफरेंट नेटवर्क्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो फिर हम गेटवेज यूज़ करते हैं। चेकसम एक हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं टू फॉर एरर डिटेक्शन। ओके, आईपी के साथ यूज़ होता है गाइस टीसीपी। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आईपी तो हो गया पैकेट को डिलीवर करने के लिए, एक नेटवर्क, एक मीडियम। तो फिर टीसीपी का क्या रोल है? टीसीपी एंड टू एंड, मतलब एंड यूजर्स जो हैं, चाहे वो क्लाइंट हो या सर्वर, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कम्युनिकेशन हो या वो डेटा शेयरिंग का कम्युनिकेशन हो, ये चेक करता है कि वो करेक्टली पॉसिबल है कि नहीं विदाउट एनी एरर। ओके, अगर कोई लॉस होता है डेटा में तो रीट्रांसमिशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, कनेक्शंस को मैनेज करता है, एक्नॉलेजमेंट्स को मैनेज करता है, बहुत सारी फंक्शनलिटी है। सो आप डेटा कम्युनिकेशन की बुक में इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट यूज़ करते हैं। सो ये आप इसमें बीच में लेयर्स देख रहे हैं जो 4 हैं, इनके बीच में आप देख रहे हैं बाई डायरेक्शनल एरोज हैं। तो बाई डायरेक्शनल एरोज का मतलब ये नहीं है कि एक बार में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम एक क्लाइंट हैं और हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं टू द सर्वर, फॉर एग्जांपल गूगल सर्वर, तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन लेयर मतलब हमारे कंप्यूटर में ब्राउज़र। ठीक है, तो हम ब्राउज़र से स्टार्ट करेंगे। अब हमें मेल करना है कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करना है, कि हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोटोकॉल वर्क करता है एट द एप्लीकेशन लेयर। आगे फॉरवर्ड होती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज करता है कि कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल वर्क करता है। उसके बाद वो ये ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीवर एंड की ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, क्योंकि सेम प्रोटोकॉल पर है, वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं कि जो यहाँ से डेटा भेजा गया जिस तरीके का, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में वहाँ पर डिलीवरी हुआ। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट लेयर मेंटेन करता है कनेक्शन को, एंड टू एंड नेटवर्क को, कम्युनिकेशन को, और बीच में जितना भी हमारा नेटवर्क है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। और लास्ट जो है, जब यहाँ आता है डेटा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर डेटा लिंक लेयर, मतलब ये हैंडल करता है डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द नोड टू नोड। अब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ एंड टू एंड और नोड टू नोड, ये 2 वर्ड याद रखना। एंड टू एंड का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें एंड यूजर्स के बीच में चेक होता है कि कोई एरर तो नहीं है या कनेक्शन ठीक है। और नोड टू नोड मतलब जब एंड यूजर्स, तो क्लाइंट साइड से एक बार डेटा निकल के नेटवर्क में आ गया, तो नेटवर्क में देयर आर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस। तो उन मिलियंस ऑफ डिवाइसेस में से हर एक नोड अपने नेक्स्ट नोड को
सक्सेसफुली डेटा भेज रहा है कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन है ये लास्ट लेयर। और फिजिकल लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा क्या है कि हमारे एक्चुअली हम जो सारा काम कर रहे हैं वर्चुअल है। हम कभी 0-1 की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट और वीडियो की बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंप्यूटर के अंदर हम बाइनरी, इवन बाइनरी भी क्या है? एक वर्चुअल वर्ल्ड है। बाइनरी भी कुछ नहीं होता है, होता क्या है? लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल उस वर्चुअल, उस लॉजिकल 0-1 को फाइनली लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के करंट में कन्वर्ट करे, क्योंकि कॉपर वायर में वोल्टेज ट्रेवल करता है, बिट्स ट्रेवल नहीं करती हैं। तो वोल्टेज ट्रैवल करने के लिए वोल्टेज बनाना पड़ेगा, करंट बनाना पड़ेगा। वो करंट जनरेट होता है लास्ट लेयर से। तो फिजिकल लेयर उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको आगे ट्रांसमिट करेगा। अब ये जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो उल्टा चलेगा नीचे से, कि पहले वोल्टेज आया, वोल्टेज से वो चेक हुआ, वोल्टेज ने उसको लॉजिकल बिट्स में कन्वर्ट किया, लॉजिकल बिट्स में चेक हुआ, फिर इंटरनेट लेयर में गया, वहाँ चेक हुआ कि कोई एरर नहीं है, कनेक्शन ठीक था। फिर उसका ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड डिलीवरी चेक हुई, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर तक गया और ब्राउज़र में हमने उसको ओपन किया। ओके, सो ऐसे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट वर्क करता है। www हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब हम, यस, एनी डाउट्स? सर आप एक बार लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड, दिस वन, यस। पूछो। जैसे हम अगर मान लो हमारे को डेटा सेंड करनी है तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी, तो आप कह रहे हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यूजर टू यूजर कनेक्शन है उसको मेंटेन करती है और उसके बीच में एरर चेक करती है कि एंड टू एंड में कोई एरर तो नहीं है। तो मतलब जब तक हम इंटरनेट लेयर से हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करते तो तब तक नहीं, इंटरनेट एक्चुअली ये एस्टैब्लिश करेगा नोड टू नोड, क्योंकि एंड टू एंड ये कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होगा, लेकिन उस कनेक्शन को मेंटेन रखेगी ट्रांसपोर्टर। इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। कनेक्शन का बनाने का काम तो इंटरनेट लेयर करेगी। अभी तो इसने केवल इसको मेंटेन करके रखना है अपने पास डेटा। जब एक बार जब कनेक्ट यहाँ से डेटा जाएगा और दूसरी साइड पे एंड यूजर के पास जब वो डेटा पहुंचेगा, तो पहली बार में तो रिक्वेस्ट होगी ना कनेक्शन के लिए, पहली बार में कनेक्शन की रिक्वेस्ट होगी, तो कनेक्शन को एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर ये डिलीवरी मैनेज करेगा। ऊपर है डिलीवरी सर्विस, तो डिलीवरी सर्विस के लिए ये रेडी रहेगा। इंटरनेट लेयर ने स्टार्ट कर दिया कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का काम, ओके। और ये फिर जब एंड यूजर की तरफ पहुंचेगा तो नीचे से स्टार्ट करेगा, और वहां पे इंटरनेट लेयर जब एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट चेक कर लेगा और ऊपर जब ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाएगा, तब फिर वो प्रोसेस डिलीवरी शुरू होगा। तो एक तरह से ये एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर के जो प्रोटोकॉल है वो एंड यूजर, दूसरे एंड यूजर के ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल के साथ एक एग्रीमेंट है। वैसे ही इंटरनेट लेयर के प्रोटोकॉल और रिसीवर एंड के इंटरनेट प्रोटोकॉल, उनके बीच का एक एग्रीमेंट है। यहाँ पर जो भी चीज करते हैं उसका जस्ट रिवर्स इफेक्ट होता है रिसीवर एंड पे। जैसे यहाँ पर अगर आप इंक्रिप्शन करते हो एप्लीकेशन लेयर में, तो एंड अदर यूजर के एप्लीकेशन लेयर पे डिक्रिप्शन होगा। यहाँ पर अगर आप डेटा में कंप्रेशन करते हो तो वहाँ पे डिकम्प्रेशन होगा। तो सारा रिवर्स इफेक्ट होता है इन दिस कम्युनिकेशन। ओके, एनी अदर डाउट? बाकी इसको पढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा यू हैव टू एक्सप्लोर OSI। अब OSI को स्टडी करो, क्योंकि OSI एक
प्री डिफाइंड मॉडल है। OSI मॉडल के बेस पर ये TCP और UDP और बहुत सारे प्रोटोकॉल सूट्स बनाए गए हैं। तो ये OSI में जो 7 लेयर्स होती थी उसी में से इंटीग्रेट किया हुआ है। जैसे OSI की टॉप 3 जो लेयर्स हैं उनको इंटीग्रेट करके यहाँ पर ये टॉप लेयर एप्लीकेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है, इंटरनेट जो नेटवर्क लेयर है OSI की उसको इंटरनेट लेयर बोला गया है, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर उसको मर्ज करके यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस लेयर बोला गया है। ओके, तो हमें नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में को ज़्यादा हम उसमें जाएंगे तो हमारा वेब टेक्नोलॉजी छूट जाएगा। तो आप लोग उसको डेटा कम्युनिकेशन में कौन सी बुक आप लोगों ने रेफर की थी? टेनेनबाउम। डेटा कम्युनिकेशन में आप लोगों ने कौन सी बुक पढ़ी है? सो फोरोजन थी। फोरोजन थी, हाँ फोरोजन भी बढ़िया है। आप उसमें OSI सर्च करो, OSI भी है, TCP/IP भी है, उसमें काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके ओके, सो कमिंग बैक टू वेब। तो वेब में अभी हमने क्लाइंट और सर्वर के बारे में डिस्कस किया गाइस। नाउ अब व्हेन हम वी यूज दिस क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो क्लाइंट सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजता है पहले कनेक्शन बनाने के लिए, फिर उसके बाद कुछ भी डॉक्यूमेंट को डिमांड करने के लिए। तो जब हम कनेक्शन बन गया, फॉर एग्जांपल कनेक्शन बन गया, कनेक्शन बनने के बाद जब हम रिक्वेस्ट करते हैं और स्पेशली वेब पेजेस, सबसे पहले वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, HTTP। इसलिए हमारी कई सारी वेबसाइट्स का एड्रेस जो है वो HTTP और नाउअडेज इट इज़ नोन एज HTTPS। S मीन्स ये अब मोर सिक्योर्ड है, इसलिए इसको HTTPS यूज करते हैं। ओके, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर यूज़ करता है तो हमें उसके साथ में हाइपरटेक्स्ट का मतलब समझना होगा कि अगर हाइपरटेक्स्ट, सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कोई भी टेक्स्ट जो हमारे पास है उस टेक्स्ट को अगर हम लिंक बना दें, अगर हाइपर एक टेक्स्ट को हम लिंक बना दें तो वो हो जाएगा हाइपरलिंक। So hypertext, a format of information which allows one to move from one part to a document to another or from one document to another through hyperlinks. So जैसे इसको मैं इस तरह से दिखाऊँ आपको कि फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक, अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इस नॉर्मल टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं वेब पे नहीं काम कर रहा हूँ, ये फीचर तो आप नॉर्मली कहीं पर भी, अब मैं इसमें इसको लिंक करके फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक इंसर्ट लिंक कर दूं आपका वेब टेक्नोलॉजी सिलेबस और ओके, ये लो। अब ये क्या बन गया बेटा? अब ये क्या बन गया? हाइपरलिंक बन गया। ठीक है, अब हाइपरलिंक बन गया। अब देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? ये hypertext, a format of information which allows one to move from the one part of the document to another or from one document to another document। जैसे इस पे लेके आया तो कर्सर चेंज हुआ। कर्सर क्या दिखा रहा है? देखो एड्रेस भी दिखा रहा है, कई बार आप चाहो तो एड्रेस हाइड भी कर सकते हो कि वो डिस्प्ले ना हो। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? ये देखो क्या खुल गया, दूसरा पेज खुल गया, खुल गया ना? You can still see the spot, sir, but I understand what you're talking. What happened? You're trying to show us a website right now, sir, right? तो अभी आप लोगों को यहाँ पर मैंने I show you that how we can create hyperlinks. You Right. just select a word, okay, and so this is just a shortcut of creating a hyperlink. But when we use a web page, when we want to design a web page, for example a front page only, you can use, for example, many tutorial websites you have already visited,
to learn something. You see many links are there. At the bottom you see two links, that previous and next. Next and previous, these two words are there, but as soon as you take your cursor to that next or previous link, it turns to the different color. Okay, and when you click it, another page is loaded and the previous page was disappeared. Yes or no? So that working is known as a hyperlink, when one thing can redirect you or take you to the another part of the document or any other document. और इसको मैं इसको मैं इसमें कैंसिल भी कर सकते हैं, रिमूव लिंक, इट इज रिमूव नाउ. Okay, so now this is the single thing which I have done on this PPT. Okay, but when you create a web page, so the first web page was created through the HTML. So finally HT means hypertext and ML means markup language. So HTML defines the structure and the content of the hypertext document. So हम normally websites को कैसे visit करते हैं, हम website में एक पेज देखते हैं और उस पेज में हम किसी कई जगह क्लिक करते हैं, और क्या होता है, वो जो पेज पे हमने क्लिक किया या तो वो हमें नया पेज ओपन करके देता है, ये एक अलग फंक्शनैलिटी है, या फिर हम सेम ब्राउज़र विंडो में ही प्रीवियस पेज हमारा डिसअपियर हो जाता है और नया पेज लोड हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट टाइम जो वेब पेजेस बनाए गए थे वो HTML में बनाए गए थे, इसलिए अभी हमें स्टार्टिंग में HTML यूज़ करना है. और HTML के लिए जो वेब पेजेस को हम जब यूज़ करते हैं थ्रू इंटरनेट या हमारे विद इन द कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो HTTP प्रोटोकॉल वर्क करता है. ओके, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नाउ सो अब हम फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी के लिए अगर अपन लोग वेबसाइट बनाते हैं, और तो हमें वेबसाइट में दो चीज़ें रखनी होती है. एक हम वेब क्लाइंट बनाते हैं, मतलब एक हम वेब पेज बनाते हैं, जैसे DMS. आप लोगों ने DMS देखा हुआ है. जो DMS है आपका, वो आपके लिए एक यूज़र इंटरफेस अलग है, और यहाँ जो DMS एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर, उनके लिए वेब पेजेस अलग अलग हैं. तो मतलब क्या हुआ, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड. तो अभी हम क्लाइंट साइड देखें कि क्लाइंट साइड अगर हम वेब क्लाइंट की बात करें जो ब्राउज़र पर ओपन होगा, तो इट मेक्स HTTP रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र. तो सबसे पहले हम पहले रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की बात करें, क्योंकि ये एक आप लोगों ने शायद हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा. जब भी आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल बनेगा. ओके, सो आप जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जाएंगे तो रीफॉर्मेट द URL एंटर्स एट द वैलिड HTTP रिक्वेस्ट DNS, द डोमेन नेमिंग कन्वर्ट्स. अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं डोमेन नेमिंग में गाइस, हम लोग नॉर्मली कोई भी वेब पेज है जो यू वांट टू एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट, हर एक वेब पेज किसी न किसी कंप्यूटर पे स्टोर्ड है. वो कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस है, एंड यू डो नॉट नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर, यू नो द IP और द DNS. सो नॉर्मली हमें IP भी याद नहीं रहते हैं, क्योंकि IP हमेशा 4 ब्लॉक्स में रहेंगे, हम कितने IP याद रखेंगे. सो नॉर्मली आपने लिखा www.amazon.in, लेकिन वो amazon.in का जो होम पेज है वो किसी एक कंप्यूटर पर स्टोर्ड है, तो वो IP से, ओके, IP से भी आपने जो DNS डाला, DNS मतलब amazon.com, डोमेन नेमिंग, हमने डोमेन नेमिंग डाला, डोमेन नेमिंग से वो ऑटोमेटिकली IP में कन्वर्ट हुआ. जैसे कि यहाँ पर देखो HTTPS, अब मैं डालूं 8.8.8.8, ये क्या है, IP एड्रेस. दिख रहा है क्या गाइज आपको? एक मिनट, आप लोग अपने सिस्टम में करके देखो. एक नया ब्राउजर ओपन करो, ब्राउजर, ब्लैंक ब्राउजर, और उस पर लिखो HTTPS:8.8.8.8 और फिर एंटर प्रेस करो.
So पब्लिक डीएनएस खोलो गूगल का। गूगल पब्लिक डीएनएस। गूगल पब्लिक डीएनएस खुलाना, तो ये है गूगल का आईपी, और हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डीएनएस। तो डीएनएस और आईपी आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं यूज इंटरनेट। नॉर्मली हम आईपीज याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए फिर डोमेन नेमिंग सिस्टम को आईपी से मैप किया गया है कि हम डोमेन नेम यूज करें और उससे वो ऑटोमेटिकली आईपी में जाएगा और उस आईपी से वो उसके सिस्टम तक जाएगा। क्लियर? तो ये टीसीपी जो है वो हमारा पहले रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बेसिस पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ये आईपी एड्रेस उसमें मैप होगा, उसके बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू हम सर्वर के रिस्पांस का वेट करते हैं। ओके, नाउ सर्वर की तरफ क्या होता है, सर्वर हमेशा रिक्वेस्ट का वेट करता है। जैसे गूगल सर्वर है, अब गूगल सर्वर तो कभी क्लाइंट है नहीं, वो हमेशा सर्वर है, तो वो वेट करता है। जैसे ही सर्वर रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी कनेक्शन के लिए। When a connection request is received, the server creates a new process to handle this connection. The new process establishes the TCP connection and waits for the HTTP request. The new process invokes the software that maps the requested URL to resource on the servers. So now URL means what? Uniform Resource Locator. अब जरूरी ये नहीं है आपने गूगल से किस चीज की रिक्वेस्ट की। अब अगर आपने गूगल से बोला कि मुझे कोई पर्टिकुलर एक्समैन मूवी चाहिए, तो आप गूगल अपने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को सर्च कराएगा कि एक्समैन मूवी की लिंक्स कहाँ कहाँ पर है, तो वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उस चीज को लेके आएगा सर्वर तक। नाउ इफ द रिसोर्स इज अ फाइल, again creates an HTTP request that contains the file in the body of the response message. If the resource is a program, that runs the program and returns the output. So कई बार हम MP3 सर्च करते हैं, मूवी फाइल सर्च करते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, तो जिस तरह की भी आप फाइल सर्च कर रहे हैं वो एक तरह का है रिसोर्स। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसको सर्च करता है बैकग्राउंड में और लेके फिर सर्वर तक आता है, और सर्वर पर HTTP के थ्रू हमेशा आपको वेब पेजेस के फॉर्म में ही आपको सर्व करता है। तो हमने ये डिस्कस किए थे, HTML हमने यूज करके देखना है सबसे पहले, फिर हमें उसका एक्सटेंसिबल वर्जन जो है दैट इज क्लीनर वर्जन ऑफ HTML, XHTML, फिर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अब हाँ, प्रोग्रामेबिलिटी मीन्स कि हम स्टैटिक पेजेस बना के ही हाइपरलिंक बना दें तो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने सभी लोगों ने विकिपीडिया यूज़ किया है, किया होगा ना सभी ने, हम कुछ भी सर्च करते हैं सबसे पहले विकिपीडिया आता है। नाउ गाइस एक चीज़ बताओ, विकिपीडिया में आप जब कुछ भी सर्च करते हैं तो उसका जो सबसे फर्स्ट पेज है आज आपने सर्च किया एक्समैन, तो आपको एक्समैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का फ्रंट पेज दिख रहा है। कल को आप सर्च करते हैं कपिल देव, तो आपको वो पेज दिखता है। फिर आप सर्च करते हैं शाहरुख खान, तो आपको वो पेज दिखता है। लेकिन आपने कोई चीज़ इसमें से नोटिस की कि उसका जो फ्रंट एंड व्यू है, मतलब यूज़र इंटरफेस है, वो चेंज नहीं हुआ है ना। यूज़र इंटरफेस चेंज नहीं हुआ होम पेज का, केवल चेंज किया हुआ इंफॉर्मेशन। ऐसे ही होता है ना, हर बार एक अलग यूजर इंटरफेस आपको नहीं मिलता है, यूजर इंटरफेस कॉमन रहता है। तो ये ड्रॉबैक है सिंपल डॉक्यूमेंट मॉडल। अगर हम ऐसे बनाते कि कपिल देव का नाम का अलग पेज, शाहरुख खान के नाम का अलग पेज, सारी चीज़ों के अलग अलग पेज, तो हमें बहुत सारे स्टैटिक पेजेस बनाने पड़ेंगे। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा स्टोर्ड है और हमारे पास एक कॉमन यूज़र इंटरफेस है। जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किया जाता है, हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वहाँ से इंफॉर्मेशन को लेके उसको डायनेमिकली वहाँ पर पेस्ट कर देता है, और इसलिए हमारे यूज़र इंटरफेस कॉमन रहता है और इंफॉर्मेशन बदलती रहती है। So what are the examples of information that might be a part of the web document that may not be known before they are requested? So हमें जब पता ही नहीं है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन कोई यूज़र सर्च करने वाला है, हम स्टैटिक पेज बना कैसे सकते हैं? इसलिए हमें डायनेमिक पेजेस की ज़रूरत है।
तो अगर हम क्लाइंट साइड की बात करेंगे तो क्लाइंट साइड के लिए जो हम पेजेस बनाते हैं, क्योंकि एक बार में मल्टीपल क्लाइंट्स एक वेबसाइट पे हैंडल करते हैं, तो वो हम मोस्टली लाइट वेट होनी चाहिए। तो लाइट वेट के लिए हम नॉर्मली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का आप सभी ने नाम सुना है, और भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसको हम दूसरी जो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, मतलब वेब पेजेस डिजाइनिंग लैंग्वेज, उनके साथ भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। फिर सर्वर साइड में प्रोग्रामेबिलिटी में जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं तो रिस्पांस देना है, मतलब सर्वर के पास भी एक इंटरफेस होना चाहिए। वो इंटरफेस के लिए हम CGI, पर्ल, PHP, ASP.NET, जावा सर्वर पेजेस, इस टाइप की प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, जो कि सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाते हैं। ओके, तो ये सब तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, और अभी एक और चीज़ थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। वैसे तो रिपीटेड है, लेकिन चूँकि आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, सो दैट्स वाई हम उसका एक सिनेरियो लेते हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है, एंगुलर JS, ब्लॉकचेन, इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए। नाउ हम यहाँ आते हैं, आप लोगों को DMS यूज़ करते हैं। आप लोग DMS में यूज़र ID, पासवर्ड आपसे पूछा जाता है सबसे पहले। ओके, आप तो जो नॉर्मली यूज़र ID, पासवर्ड डाल देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है वो हमें वहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक हमें ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी हम आगे की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे हमारा सिनेरियो क्या रहेगा कि हम कम्युनिकेट करना सीखेंगे बिटवीन द यूज़र्स। ठीक है, पहले हम अपने ही सिस्टम पे एक ही पेज से दूसरे पेज पर जाना सीखेंगे, फिर विद इन द सिस्टम्स, दूसरे सिस्टम से। तो एज सुन एज यू एंटर योर ID एंड पासवर्ड, इट सेंड्स टू, यहाँ पर देखो ये शेयर हो रहा है ना, आपको विजिबल है भाई? Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम मणिपाल का जो है वो आपका यूज़र ID चेक करेगा, और ये चेक करता है कि कितना ये यूज़र ऑथराइज्ड है या नहीं, और यूज़र ऑथराइज्ड है तो ID पासवर्ड मैच हो जाएगा। जैसे ID पासवर्ड मैच होता है तो ये डेटाबेस से एक्सेस करता है। तो डेटाबेस को हमेशा मोर सिक्योर्ड रखा जाता है। डेटाबेस नॉर्मली तो ये कंप्यूटर जो कि सर्वर साइड, मैंने आपको बताया ना क्लाइंट साइड, तो ये पेज हो गया आपका क्लाइंट साइड, ये हो गया कंप्यूटर सर्वर साइड, और इसका अलग से हो गया डेटाबेस। अब इसमें हमने जब भी हम www.jaipur.manipal.edu क्लिक करते हैं तो हमें ये इसका पेज मिलता है। अब इसमें होता क्या है, हमारा कनेक्शन बनता है सबसे पहले। सो एज सून एज वी टाइप दिस, हिट एंटर, योर ब्राउजर लुक्स द एसोसिएटेड इंटरनेट नंबर, मींस IP एड्रेस। IP एड्रेस कन्वर्ट होता है DNS से। हमने तो डाला DNS, IP एड्रेस कन्वर्ट हुआ, योर कंप्यूटर कनेक्ट्स टू द router using the TCP/IP and ask for IP address. ओके, सो वाईफाई, वायरलेस, DSL, कैसे भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे ये चेक होता है IP एड्रेस। नाउ IP एड्रेस इज शेयर बैक टू द कंप्यूटर। तभी हम जब हम DNS कई बार डालते हैं तो हमें नीचे अब देखो IP एड्रेस भी दिखाई देता है समटाइम्स। नाउ अब उसका जो डिफ़ॉल्ट पेज है उस IP एड्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज की रिक्वेस्ट होती है। योर रिक्वेस्ट पैकेट रीचेज इन द डेस्टिनेशन एंड कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर, इट रिस्पॉन्ड्स एंड रिपीट्स द अबव स्टेप्स टू गेट द डेटा बैक टू योर कंप्यूटर, और फाइनली आपको इसका होम पेज दिखता है। नाउ अब अपन जो एक बार कनेक्शन बन गया, मतलब नॉर्मली होता क्या है कि जब हम वेबसाइट को पहली बार ओपन करते हैं तो सब पहले वेबसाइट खोलने से पहले कनेक्शन बनता है, और एक बार हमने वेबसाइट खोल ली, उसका जो हम क्लिक करते रहते हैं तो केवल हाइपर लिंक्स वर्क करती हैं। तो उसमें हमारे आप देखोगे कि पहली बार में जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और उसके बाद जब हम इनसाइड द वेबसाइट वेब पेजेस क्लिक करते हैं तो टाइम थोड़ा कम होता है। अगर हम एक
बैंडविड्थ को इग्नोर करें, मतलब कि बैंडविड्थ हम मान के चलते हैं कि आइडेंटिकल, कि बैंडविड्थ एकदम बिल्कुल सेम स्पीड में चल रही है, ठीक है, हमारा बिट रेट एकदम सेम स्पीड में है। ओके, सो TCP/IP ये सब हमने डिस्कस किया था। इंटरनेट नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। रूटर भी एक डिवाइस है गाइस, जो नेटवर्किंग डिवाइस है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ स्मार्ट डिवाइस जो कि क्या करता है, बेस्ट रूट फाइंड करता है, क्योंकि हमारा एंड टू एंड जब डिलीवरी होनी है तो जो बीच में मीडियम है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट या नेटवर्क, वो हर एक रूटर ये चेक करता है कि बेस्ट रूट क्या है इसके लिए। अगर बेस्ट रूट अवेलेबल नहीं है तो सेकंड बेस्ट क्या है। तो ये एक स्मार्ट डिवाइस की तरह वर्क करता है। ओके, TCP/IP we have already discussed about, and we have already discussed about the WAN. You also know about the LAN. Okay, तो किस इस तरह से हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, और किसी न किसी डिवाइस के थ्रू वो सारे नेटवर्क्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि कोई भी एक सिंगल कंप्यूटर किसी भी दूसरे सिंगल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, सो देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ categories of connections or internet: tier 1 networks, tier 2 networks, tier 3 networks. We'll discuss it later in full detail. Okay, so this is a kind of, so हमारा अभी पर्पस क्या है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल करना है यूजिंग द इंटरनेट। ओके, सो अभी हम पहले क्लाइंट साइज और सर्वर साइड, अब हमें यहाँ पर देखो डुअल रोल प्ले करना है। हम जब क्लाइंट साइड, फॉर एग्जांपल हम अपनी कंपनी के लिए अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें किस हिसाब से सोचना पड़ता है, हमें यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है और हमें एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। इसलिए हम दो अलग अलग टाइप से उसको एनालाइज करेंगे। क्लियर गाइस? तो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। HTML पेज बनाने हैं, ठीक है। HTML के अभी आप लोग केवल स्टैटिक पेज बनाइए, आप लोग अभी डायनेमिक पेज मत बनाइए, आप लोग बनाइए स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज में मैंने जो असाइनमेंट प्लान किया है वो है SOHO। SOHO आप समझते हो? SOHO मीन्स SOHO मीन्स स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। तो अभी आपको मैंने एक सिनेरियो प्लान किया है, दैट इज कि आपको अपने घर से ही, ठीक है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस सिनेरियो में ऑनलाइन आपने कुछ ऑफिस रन करना है। मीन्स आपको कुछ एग्जीबिशन लगानी है। उस एग्जीबिशन में आपको केवल अभी व्यू ओनली राइट्स देने हैं। व्यू ओनली मतलब केवल व्यू, हाइपरलिंक पे यूजर क्लिक करेगा और दूसरा पेज ओपन होगा। तो फॉर एग्जांपल आप उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है, HTML टैग्स को मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा। तो उसमें हमको क्या करना है गाइस कि फ्रेम्स, कॉलम्स, रोज, टेबल, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको उसको बढ़िया से इतना इंटरेक्टिव, इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि आपका जो फ्रंट पेज है, जो डिफ़ॉल्ट पेज है, उसमें आपकी कुछ चीज़ें दिखेंगी और उन चीज़ों के नाम को या उसकी इमेज को या लोगो को आप हाइपर लिंक बनाएंगे। उस हाइपर लिंक से एक दूसरा पेज कनेक्ट होगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और हम प्रीवियस और नेक्स्ट वो रखेंगे। हम प्रीवियस करेंगे तो वापस होम पेज पे आ जाएंगे। फिर मुझे फॉर एग्जांपल आप बना सकते हैं आर्टिफैक्ट्स के लिए बना सकते हैं, आप चाहो पेंटिंग्स के लिए बना सकते हैं, कुछ भी एग्जीबिशन टाइप की चीज़, बस कॉपीड नहीं होनी चाहिए, सब लोग अलग अलग बनाएं और उसको सिंपल नोटपैड पे हम बना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने जावा कोड किया था। HTML के टैग्स यूज़ करके उसको हम फाइल नेम .htm से सेव करते हैं तो वो फिर ब्राउज़र में ओपन होती है, ठीक है। ब्राउज़र में ओपन होगी, हम उसमें क्लिक करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे हम केवल शिफ्ट करना सीखेंगे, ठीक है। सर ये कब तक करना है एग्जैक्टली? 3 days आर सफिशिएंट, वैसे 2 घंटे का ही काम है।
एक बार बैठोगे तो 2 आवर्स में काम हो जाएगा आपका, लेकिन 26 तक सबमिट कर देना आप लोग, ठीक है। एक बार And sir, बैठोगे तो बन जाएगा एक बार में। सर जो क्वेश्चन है जो आपने बताया, आप मतलब कोई डॉक्यूमेंट भी डालोगे जहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं? नहीं, ये आपके लिए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें जैसे कि ट्यूटोरियल जैसे ये है ट्यूटोरियल पॉइंट की बात करें अपन, अब ये क्या है, एक वेब पेज है ना गाइस, ये वेब पेज है ना। स्क्रीन नहीं शेयर किया आपने। ओके, ये दिख रहा है, अब ये वेब पेज है, ये एक लिंक दिख रहा है, ये एक लिंक दिख रहा है, ये लिंक, यहाँ पर तो ये लिंक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे परचेजिंग भी है। अब यहाँ देखो ये टैब्स दिख रहे हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा खुल गया, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये खुल गया, इस पे क्लिक करता हूँ सेम पेज में। तो बस इस तरह से हमें बनाना है कि पेजेस, ये तो अभी लोगोज हैं। अब जैसे मैं इसमें फॉर एग्जांपल ये बंदे पे क्लिक करता हूँ, अब क्या हुआ, एक नया पेज ओपन हुआ, इस बंदे की डिटेल आ गई, है ना। ये तो इन्होंने नया टैब में खोला, अब नए टैब की जगह सेम टैब में मैं इसको खोलता हूँ तो इस बंदे की डिटेल आ गई। बस इसी तरह से बनाना है, और इसमें हमें एक बैक बटन रखना है कि यहाँ पर बैक करेंगे तो हम वापस इस पेज पर आ जाएंगे। तो बस इस तरह से आप लोगोस को HTML के अंदर, तो लोगोस पे करो हाइपरलिंक, आप टेक्स्ट पे करो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ रहेगी, जैसे कि ये दिख रही है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ है, जब क्लिक करेंगे तो डिटेल इंफॉर्मेशन इस पेज पर रहेगी, कोई भी छोटी सी डिटेल। क्लियर है? Yes, sir. छोटा सा काम है, 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बस वेब पेज बनाना है। हाँ, वेब पेज को थोड़ा सा टैग्स को आप सर्च करो, ठीक है, मैं भी शेयर कर दूंगा आपके साथ HTML टैग्स। सो वो टैग्स से हम कैसे आप लोग देखते हो कई बार हमें कुछ मूवेबल चीज़ें दिखती हैं कई बार हमें नॉन मूवेबल चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मेन एम है कि हमें बस हाइपरलिंक बना के एक नया पेज ओपन करना है, और नया पेज ओपन से हमें वापस बैक करके प्रीवियस पेज पे आना है, फिर नई लिंक पे जाना है। ओके, एनी डाउट्स? और अभी जो हम दोनों स्लाइड्स डिस्कस किए हैं, इसमें कोई इशू है किसी को, कोई पूछना है? गाइस लेट कमर्स बहुत लेट आए हैं, मैं अभी देख रहा हूँ आप लोग 31 अटेंडेंस दिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से अटेंडेंस नहीं मिलेगी लेट कमर्स को, नेक्स्ट टाइम से लैब स्टार्ट होते ही विदिन 5 मिनट्स मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँगा। ओके, Okay, sir. आधी से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं, क्या करना है कैसे करना है, मैं इसलिए बस 5 मिनट्स का मैं विंडो दे रहा हूँ आपको, मेरी तरफ से क्लास स्टार्ट होते ही 5 मिनट्स के अंदर मैं अटेंडेंस डाउनलोड करूँगा, ठीक है गाइस। सो आप लोग अपना काम स्टार्ट करो, और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ देना, कॉल करना हो तो ऑफिस आवर्स में कॉल कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग आपकी ऑफ कर रहा हूँ, अटेंडेंस